Ayodhya is now on its journey towards becoming a global tourist religious hub. Now that the Ram Mandir has been inaugurated, it is extremely important to also take a look at the new masjid that is being constructed. The Indo-Islamic Cultural Foundation plans a multicultural center at Dhanipur village where the Babri Masjid's replacement will be constructed, aiming for inclusivity and reconciliation. Named Muhammad bin Abdullah Masjid, it will feature a cancer hospital, colleges, an old age home and an all-vegetarian kitchen as well. To start with, they will not be naming it after Babur. Instead, it will be called, like I said, the Muhammad bin Abdullah Masjid after the Prophet's father. The idea is to make the 11-acre site at Dhanipur village a multicultural place of dawa, which is medicine, and dua, which is prayer. They got 5 acres from the government, and the Sunni Waqf board added the adjoining 6-acre plot as well. Now a 500-bed cancer hospital, 2 colleges, an old age home and an all-vegetarian kitchen besides the Grand Mosque will be set amid gardens and fountains on the land. They plan to start a crowdfunding operation for the mosque as well. Donors will be able to dedicate a brick each for the mosque's construction. The mosque will have 5 minarets representing the 5 central tenets of Islam, which are Kalima, Namaz, Roza, Zakat and Hajj. Its prayer hall will have a space for 9,000 people at a time, making it possibly the second biggest in India after Delhi's Jama Masjid that can accommodate 25,000 people. One of the mosque's talking point is a 21 by 36 feet Quran bound in a saffron color associated with Khwaja Muinuddin Chishti of Ajmer, known as Chishtiya amongst Muslims. A large aquarium is also planned for the sightseers, and the fountain will spring to life with call for the day's last namaz. The mosque's first brick will be laid in a grand ceremony. A large brick with the mosque's name and a dua etched on it will be brought to Dhanipur in a procession after being blessed at the mosque across the country. Construction could last 5 to 6 years, and the trust will be inviting the imams from Mecca to lead the first namaz at the mosque. On your screens, viewers, are all the details about this particular mosque. What will it look like? What will it feel like? And what really is it that is at the heart of the construction of this mosque? Now that I've given you some details, let's go across over the next 1 hour to some very special voices that we have. I will like to begin this conversation with Haji Arfat Sheikh, the chief of the Ayodhya Mosque Development Committee. Haji ji, thank you so much, sir, for taking our time to speak to NewsX. We'd like to first understand from you, Mr. Arfat, are the designs for the new mosque ready in Ayodhya, or are you looking at further changes or additions? नहीं, बिल्कुल मस्जिद के डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट इमरान शेख द्वारा जो पूना में रहते हैं, जिन्होंने मस्जिद के डिज़ाइन बनाई और मस्जिद की ऐसी मस्जिद के डिज़ाइन बनाई, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया ने उस डिज़ाइन को अप्रिशिएट किया। पिछले कुछ महीने पहले मुंबई में रंग शारदा हॉल के अंदर ये डिज़ाइन दिखाई गई थी। सारे हिंदुस्तान के बड़े आलिम वहाँ पे पहुँचे थे, पीर वहाँ पे पहुँचे थे, सुन्नी, तबलीग, देवबंद और पीर लोगों के सामने पहली डिज़ाइन दिखाई गई। और वो डिज़ाइन की आपके पास ख़ास बात आपको मैं बताऊँगा कि इस्लाम की 5 बुनियाद, यानी इस्लाम के 5 फ़र्ज़, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इस 5 बुनियाद, जो 5 फ़र्ज़ों के ऊपर पहली हिंदुस्तान की पहली मस्जिद बनने जा रही है, जो जिसके मीनारे 5 इस्लाम की 5 बुनियाद पे होगी। आपने 4 मीनार की मस्जिद देखी होगी, 2 मीनार की मस्जिद। हिंदुस्तान में पहली मस्जिद जो अयोध्या में बनने जा रही है, जिसकी मीनारे 5 है, ये अपने आप में ख़ास उस मस्जिद की ख़ास बात रहेगी। अद्भुत मस्जिद होगी। अब उस मस्जिद के अंदर ख़ास और एक चीज़ है, वज़ू खाने में जो है हमने दुनिया का सबसे बड़ा, जो दुबई से बड़ा फ़िश एक्वेरियम है, वो बनाया जाएगा कि बच्चे जाएंगे, लेडीज़ जाएंगे, बुज़ुर्ग जाएंगे, वज़ू करेंगे
और वज़ू करने के बाद मछलियाँ देखेंगे फिश एक्वेरियम में, और वहाँ पे मस्जिद में जाके 2-2 रकात नमाज अदा करेंगे, ताकि जो दंगों में मारे गए बेकसूर लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी भर ता क़यामत तक के नफिले अदा होगी, दुआएं होगी, मगफिरत की दुआएं होगी। ये इस मस्जिद की खास बात रहेगी। आपको डिज़ाइन की बात करूँगा, ये अद्भुत मस्जिद होगी जिसमें मगरिब के वक्त सारी, जैसा यूपी को हमने ध्यान रखा, जो ठंडी के दिनों में जल्दी लाइट चली अंधेरा हो जाता है, फिर बरसात में जल्दी अंधेरा हो, तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी के ऊपर मस्जिद की लाइट शुरू होगी मगरिब के वक्त, और फजर के वक्त मस्जिद की लाइटें बंद होना शुरू होगी। यह अपने आप मस्जिद की खास बात होगी। तीसरी बात होगी, जब अजान होगी तो अल्लाह अकबर को तो पानी उछल के अजान देगा। ये मस्जिद की खास विशेष बात होगी। ये मस्जिद की हमने शुरुआत की, और ये मस्जिद की एक अजीब बात रखी, हमने सरकार गरीब नवाज को देखते हुए इस मस्जिद के अंदर वेज किचन बनाया जा रहा है कि कोई भी पर्यटक आएगा, उस इलाके का आएगा, अयोध्या से जो कोई भी रहेगा, वो जाके 3000 से 5000 लोग वहाँ पे पेट भर के वेज किचन बनाया जा रहा है, वहाँ वेज खाना खाया जाएगा। जी हाजी जी, आपसे एक और बात पूछनी थी। आपने काफ़ी कुछ तो बता दिया है, बट व्हाट ऑल आर यू प्लानिंग टू इंक्लूड विद द मॉस्क? हमने ये भी सुना है कि दुनिया की सबसे बड़ी कुरान जो है वो भी इस मॉस्क में होगी। इज़ दैट करेक्ट? बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान बनाया जा रहा है, जो 21 फीट लंबा है और 18-18 फीट पे खुलेगा। ये अपने आप में विशेष बात होगी। दुनिया में इतना बड़ा कुरान सबसे पहला अयोध्या में आने जा रहा है। ये अपने आप में खास बात होगी, जिसका रंग केसरी होगा, और केसरी रंग का कुरान अयोध्या में लाने की हमने कोशिश की, प्रयास किया है। ये अपने आप में खास बात रहेगी। केसरी रंग इसलिए चुना गया है, जो सूफीज़म को मानता है, गरीब नवाज को मानता है। गरीब नवाज के दुशाले का कलर केसरी रंग का हुआ करता था, तो उसको लोग भगवा कहते हैं, और जो सूफीज़म को मानता है मुसलमान पूरी हिंदुस्तान का, उसको चिश्तिया रंग कहता है। इसलिए हम चिश्तिया रंग का, केसरी रंग का कुरान वहाँ पे बनाया जा रहा है। ये अपने आप में खास बात होगी। अब वहाँ पे एक अद्भुत हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। उस अस्पताल में कैंसर का हॉस्पिटल है, जो वकार्ड, जो मुंबई के अंदर बहुत बड़े हॉस्पिटल है, मुंबई में काफ़ी बड़े पैमाने पे एक अच्छे क्वालिटी, कमिटमेंट और केयरिंग के साथ काम करने वाले ग्रुप को हमने दिया है काम, जो कैंसर का हॉस्पिटल चलाएंगे, जो इमदादिया होगा। हमारा दावा है, हमारा मानना है, इसके बाद मुंबई शहर से में कोई भी यूपी से कैंसर का पेशेंट टाटा हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। जो जाएगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में जाएगा, और उसका मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। वो इमदादिया हॉस्पिटल होगा। ये अपने आप में बात होगी। वहाँ पे डेंटल कॉलेज बनाया जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, आर्किटेक्चर कॉलेज बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल स्कूल बनाई जा रही है। ये अपने आप उस इलाके के लिए खास बात होगी कि जब हम बात करते हैं सबको लेके चलना, सबको आगे लेके जाना, और अयोध्या के अंदर राम और रहीम का एक शहर माना जाएगा। ये अपने आप में एक बात है। ये मोहम्मद जो नाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये इस तरीके की पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनने जा रही है, जो नबी के नाम पे बनने जा रही है। इस नाम की बरकत से इस देश में रहमतें आएगी, बरकतें आएगी, नूर की बारिश होगी, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। ये हमारा इस नाम के बार बरकत से हमारा ये मानना है, ये हमारा पूरा ईमान है। The plan sounds absolutely excellent, Haji ji. Like I said, you've already told us quite a bit, but I'd like to understand from you further. How do you feel this mosque will celebrate unity in diversity? बिल्कुल, जब जाते हैं, जब नबी की सीरत को हम पढ़ते हैं, सरकार गरीब नवाज की अगर सब सीरत को पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में एक बात रहेगी कि आप जब अजमेर शरीफ अब जाते हैं, तो जब आप देखेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति धर्म का तो व्यक्ति वहाँ पे जाता है, दुआएं मांगता है। तो ये अपने आप में, ये मस्जिद अपने आप में बात करेगी। जब वहाँ वेज किचन बनाया जाएगा, जो कोई भी वहाँ पे जाएगा, पर्यटक जाएगा, तो उसको उस तरीके से वेलकम किया जाएगा, मोहब्बतों से वेलकम किया जाएगा। ये मस्जिद दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा, क्योंकि जब वहाँ जाएगा तो वो देखा नहीं जाएगा कि इसका इलाज जो अस्पताल में हो रहा है वो हिंदू है या मुसलमान है। वहाँ दुआएं की जाएगी, डॉक्टरों के हाथों में उस मस्जिद में दुआएं होगी, और उस बरकत से डॉक्टरों के हाथ में अल्लाह शिफा देगा, और वहाँ जो भी पेशेंट जाएगा उनका इलाज होगा, और मुफ्त में इलाज होगा। यह अपने आप में बात होगी। हर कोई मस्जिद के प्रमाइसेस में जाके
पेट भर के खाना खाएगा। ये अपने आप में एकता की बात होगी कि आपने दरगाहों में मुसलमानों को जाते हुए देखा है। ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद होगी जिसके मस्जिद के प्रीमाइसेस में एक हिंदू आदमी भी पेट भर के खाना खाएगा और वेज किचन होगा, उसको ये लगेगा कि ये मेरा किचन है। इस तरीके से वो मस्जिद के अंदर वेलकम किया जाएगा। ये अपने आप में देश में एकता की और मोहब्बतों की मिसाल ये मस्जिद कायम करेगी। At the same time, Haji ji, coming to the practical aspect of it, what really is the project then expected to cost? नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर हमने आर्किटेक्ट उसके ऊपर गौर कर रहे हैं और किस तरीके से मस्जिद की डिज़ाइन देख रहे हैं। उसमें अस्पताल बनने जा रहा है, इतने सारी चीज़ें आ रही है, तो एक्स्ट्रा ज़मीन भी हमको लेना पड़ेगी। इसलिए जो 5 एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने हमको दी और एक्स्ट्रा ज़मीन हम वहाँ पे खरीदेंगे और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण होगा, हॉस्पिटल बनेगा। ओल्ड एज होम आ रहा है, ओल्ड एज होम तो हम अगले साल जिसके बारे में हम बताएंगे, उसका नाम डिक्लेयर करेंगे। मुझे ये यकीन है कि ओल्ड एज होम इस तरीके से बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में इससे बड़ा ओल्ड एज होम नहीं होगा और उस ओल्ड एज होम में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। ये अपने आप में एक बात रहेगी। इसका अगले साल हम हमारे राब्ता मसाजिद के उलमा, हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फारूकी साहब और हम सब मिलकर उसका नाम का डिक्लेरेशन करेंगे। और खास तौर पे आपको कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इस मस्जिद के लिए रास्ते पे चंदा मांगते हुए नजर नहीं आएगा, रिसीट फाड़ते हुए नजर नहीं आएगा। वेबसाइट द्वारे एक वेबसाइट बनने जा रही है जिसका उद्घाटन फरवरी में हम करेंगे और उसके अंदर एक QR कोड आएगा। छोटे छोटे सॉन्ग्स बनाए जा रहे हैं, कव्वालियाँ बनाई जा रही है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की शान में कुछ शायर लोग अपनी तरीके से अंदाज में कुछ शायर लिख रहे हैं और उस ज़रिए से हम QR कोड के ज़रिए जाएंगे और QR कोड पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं पे भी इंडियंस रहते हैं वो लोग उसके ऊपर मस्जिद का चंदा देंगे। जैसी आपने अगर किसी भी व्यक्ति ने, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी डायरेक्ट मस्जिद में पैसे दे सकता है। जिसको अस्पताल में देना अस्पताल में देगा, जिसको मस्जिद में देना मस्जिद में देगा, जिसको ओल्ड एज होम में देना ओल्ड एज होम में देगा, जिसको कॉलेज में देना है कॉलेज में देगा, जिसको किचन वेज किचन में देना है वो वेज किचन में देगा। जिसको जिस अंदाज से पैसे देना है वो देगा। और शरई नुक्ते नज़र को देखते हुए मस्जिद का जो पैसा होता है, जो हलाल पैसा जो होता है, उस पैसे से मस्जिद बनाई जाएगी। उसके ऊपर भी गौर फिक्र हमारे उलमा करेंगे और उस तरीके से किया जाएगा। जैसी कोई व्यक्ति ने 100 रुपये अगर चंदा मस्जिद को देंगे तो उसके मोबाइल पर तुरंत मैसेज आएगा, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शुक्रिया, आपके 100 रुपये मिले, और नीचे दुआ लिखी जाएगी, ताकि डायरेक्ट पैसा, मस्जिद का पैसा डायरेक्ट मस्जिद में है। कोई आम आदमी पैसा भी देता है तो डायरेक्ट मस्जिद किसी व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं जाएगा। इस तरीके से प्लानिंग की जा रही है और बहुत जल्दी राब्ता मसाजिद बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फारूकी साहब और मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का पूरी जो कमेटी वो सारी करेगी। मुझे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कमेटी का, डेवलपमेंट कमेटी का जब चेयरमैन बनाया गया उसके बाद ये सारी डिज़ाइनिंग, इसके ऊपर हमने 6-8 महीने से मेहनत करके और पूरे हिंदुस्तान के आलिम दीन को हम समझाने में काफ़ी हद तक के कामयाब रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इस देश में मोहब्बतें आनी चाहिए। खास कहूँगा, नबी का फरमान है, तुम जिस देश में रहो उस देश के हिब्बुल वतनी बनो, यानी तुम जितना तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो उतना तुम तुम्हारे देश से प्यार करो। यही पैगाम आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, हम बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था, बाबर इस देश पे तीर तलवार भाला लेके आया था, बाबर इस देश को लूटने आया था। बाबर हमारा आइडियल हो नहीं सकता, हम बाबर को नहीं मानते। हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, हम नबी को मानने वाले लोग हैं। हम इस कॉन्सेप्ट पे इस मस्जिद का काम की शुरुआत करेंगे और मुझे यकीन है देश के युवा, देश के उलमा, देश के पीर, हर एक लोग इस कार्य के अंदर अच्छे कार्य में जुड़ेंगे और उस धरती से, उस अयोध्या से, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से इंशाअल्लाह ताला अयोध्या के अंदर बहुत अच्छी बदलाव आएंगे और वहाँ से पूरे देश और दुनिया में एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचेगा इंशाअल्लाह। एक्सीलेंट हाजी जी। आई जस्ट ऑल्सो लाइक टू ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आपने काफ़ी बता दिया है क्या मस्जिद के बारे में कि क्या होगा और क्या विजन है और क्या प्लान है, बट एट द सेम टाइम व्हेन आर यू होपफुल सर, व्हेन विल द कंस्ट्रक्शन एक्चुअली बिगिन? बिल्कुल जल्द से जल्द हम लोग रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे ज़मीनों का प्रोसेस शुरू है। अभी हमने एक वहाँ पे आर्किटेक्ट हमने जो हमारे जो उन्होंने अपॉइंट किया उधर लोकल आर्किटेक्ट है, उसके तरीके से वहाँ पे जगह की मोजनी चल रही है, वहाँ पे सब जगह देखी जा रही है, सारी चीज़ें। कोई भी
छोटा से छोटा लिटिगेशन हमको वहाँ नहीं चाहिए। किसी का एक पान की टपरी होगी तो भी हम उसको बात करेंगे, क्लियर कट चाहिए, क्योंकि फिर से हमको वापस कोई दोबारे ऐसे झंझट में नहीं पड़ना है कि कोई व्यक्ति आके मस्जिद के गेट पे आके ये नहीं बोले कि इसने हमारी जगह किस तरीके से लिए। टाइटल क्लियर ज़मीन ही हम उधर बात करेंगे और टाइटल क्लियर ज़मीन के ऊपर ही काम करेंगे और हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर देखा जाएगा। जो प्रॉपर्टी ज़मीन मस्जिद के लिए जाएगी, मस्जिद के प्रमाइसेस के लिए जाएगी, एकदम टाइटल क्लियर ज़मीन देखेंगे और उसके बाद ही पूरे परमिशन लेकर सरकार से हम इतनी वो करेंगे कि सरकार से हमको कोई दूसरी मदद नहीं चाहिए। सरकार से इतनी चाहिए मदद कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के ऊपर हमारा परमिशन दिया जाए और जैसी परमिशन सारे मिल जाते हैं वैसी रमज़ान के बाद मुंबई शहर से पहली ईंट निकलेगी और वो ईंट अयोध्या में ले जाया जाएगी। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली ईंट 1000 से ज़्यादा पीर, सूफ़ी, संत और उलमा हमारे साथ जाएंगे और वो ईंट की बुनियाद वहाँ रखेंगे और उसका काम शुरुआत किया जाएगा। ओके हाजी जी, डू यू फील समवेयर, क्योंकि अब मंदिर बन गया है, मस्जिद भी बनने वाली है, डू यू फील अयोध्या विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर पीपल ऑफ ऑल फेथ्स? हाउ क्रूशल इज दैट? बिल्कुल बनना ही चाहिए कि जब ये देश सबका है और ये जब देश सबकी बात करते हैं तो सब मोहब्बतों का पैगाम पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है अयोध्या नहीं, पूरा हिंदुस्तान सबके लिए होना चाहिए और हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को देख के वाह कहना चाहिए, एक दूसरे को देख के लोगों के अंदर मोहब्बतें आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो तहजीब की हम बात करते हैं, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, जो अयोध्या से जो विवाद शुरू हुआ था वही अयोध्या से विवाद ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ राम होंगे वहाँ रहीम भी ज़रूर होंगे और मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बरकत से मुझे लगता है सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और इस देश के लिए दुआ करेंगे और ये देश दुनिया का नंबर 1 का देश होगा। इस देश से पैगाम पहुँचेगा और जो देश, जो दुश्मन देश है वो भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे और जो हमारे देश के खिलाफ जो बातें करते वो भी, उनकी भी आवाज़ें बंद होगी। मुझे लगता है ये 100% ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस देश को दुनिया के नक्शे के ऊपर एक नंबर का बनाएगी। आपको खास बात बता रहा हूँ कि जिस जगह पे हमारी मस्जिद बनने जा रही है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप भारत को देखें, भारत के नक्शे को देखें, जब हम कहते हैं भारत माता, जब भारत माँ की बात करते तो भारत के दिल में मस्जिद बनने जा रही है। ये अपने आप में इस मस्जिद की विशेष बात रहेगी कि भारत ने अपने दिल में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बसाया है। ये एक पैगाम देश में और दुनिया में बहुत ज़ोरों से जाएगा और देश में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इस मस्जिद को देखकर, इस मस्जिद की मीनार को देखकर फैज़ पाएंगे, क्योंकि नबी का नाम एक बका नाम है। इस नाम के अंदर इतनी बात है कि इस देश और दुनिया में ये नाम मोहब्बत पहुंचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। Haji ji, thank you so much. Before we let you go, one last question, sir. Is the Ram temple and now the new mosque at an alternate site a very good example of how India can move past the bitter divisionism that has been going on in our country since independence? देखिए, जब हम बात करते हैं, जब धर्म की बात करते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने मज़हब को मानता है, अपने अपने तरीके से पूजा प्रार्थना करता है। मुसलमान मस्जिद में दुआएं करता है, नमाज़ें पढ़ता है, सिख समाज अपने तरीके से करता है, क्रिश्चियन अपने तरीके से करता है। तो हर एक को अपने अपने धर्म के अंदर अपने तरीके से बढ़ने का हक को, सबको हक है, सबको अधिकार है। लेकिन अगर अयोध्या के अंदर इस तरीके की चीज़ आती है और ये चीज़ 100% जब मंदिर, मस्जिद, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया जाता है, तो वो पैगाम 100% आने वाले कल के अंदर इस देश के लिए अच्छा साबित होगा, इस शहर के लिए अच्छा साबित होगा, अयोध्या के लिए अच्छा साबित होगा। हमारे देश की वाह वाह का डंका पूरे देश और दुनिया में बजेगा कि हर कोई व्यक्ति मोहब्बत से यहाँ जीता है। हर जैसे पहले हम कहते थे कि ये देश खुशहाल है, खुशहाल देश है, 100% ये खुशहाली वाला देश होगा। जब नमाज़ें होगी वहाँ पे पूजा होगी, यहाँ पे नमाज़ें होगी और नमाज़ पढ़ के हम दुआ करेंगे। और जब ईद और दिवाली होगी, जब एक तरीके से एक शहनाई के साथ दिवाली और ईद मनाई जाएगी, तो 100% इस देश में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल हमेशा कायम रहेगी, ये मुझे लगता है। और इसमें कोशिश करने के लिए एज अ इंडियन, एज अ मुसलमान, मेरे नबी ने जो फरमान दिया, मेरे गरीब नवाज ने जो पैगाम पहुँचाया, उस पैगाम पहुँचाने के लिए हाजी अराफात शेख आखिरी दम तक कोशिश करते रहेगा कि हर कोई व्यक्ति मोहब्बत से जिए और मोहब्बत का पैगाम इस देश में पहुँचाए। Haji ji, thank you so much for taking out the time to join us. It's been a momentous few days for Ayodhya, and we're so glad that we got to have this conversation with the man who's looking after
the construction of the masjid in Ayodhya as well. But I also have with me, I'm being told, a very special guest with us on the broadcast. We're being joined by Mr. Imran Sheikh, who is the architect of the masjid. Imran ji, thank you so much for taking our time, sir, to speak to NewsX. We'd like to begin by asking you, Mr. Sheikh, what was your inspiration behind the design for the mosque in Ayodhya? ये डिज़ाइन की प्रेरणा हमारी जो इस्लाम की जो 5 फंडामेंटल्स हैं जी, जो है कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम हैं, ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को ही हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इस मस्जिद को डिज़ाइन किया था। अक्सर दुनिया में लोगों ने देखा होगा कि मस्जिदों के जो शेप होते हैं वो स्क्वेरिश होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन ये मस्जिद दुनिया की ऐसी पहली मस्जिद है जो पेंटागन शेप की है, जिसमें 5 साइड्स हैं ओके, और 5 बुलंद मीनारें हैं और हर मीनार एक फंडामेंटल को बताएगा, जताएगा और डिवोट करेगा। जैसा हर मीनार, कोई एक मीनार जो कलमा डिफ़ाइन करेगा, एक मीनार ज़कात डिफ़ाइन करेगा, एक मीनार हज डिफ़ाइन करेगा, एक मीनार रोज़ा डिफ़ाइन करेगा और एक मीनार जो है वो नमाज को डिफ़ाइन करेगा। जी, तो बेसिक प्रेरणा यही थी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है वो यहाँ पर हम लोग आर्किटेक्चरल फॉर्म में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। उसकी जो फ़िलॉसफी है, उसका जो बेसिक जो क्रक्स है इस्लाम का, यहाँ पर हम लोग ने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी। okay. Imran ji, I'd also like to understand, I mean, you've already explained what the design is all about, but what can you tell us about some of the specific features of the mosque that you're building in Ayodhya? Like I said, beyond the 5 minarets, which is a very unique feature of the mosque, what more will be there, sir? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अलावा काफ़ी और भी सारे चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इसके हम लोगों ने प्योरली इस्लामिक आर्किटेक्चर के फंडामेंटल जो है वो यूज़ करते हुए डिज़ाइन किए हैं और उसके अलावा उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे अलाइड और एक्सेलरी रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरह की हम लोगों ने वहाँ पे बड़ा सा एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जो कि कोई बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ आ सकता है। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ लाइब्रेरीज रखी है, एक म्यूज़ियम हमने रखा है और कुछ हम लोगों ने एक बड़ा सा एक्वेरियम रखा है वहाँ पे, जो एक काफ़ी बड़ा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर वर्ल्ड का वन ऑफ लार्जेस्ट कुरान यहाँ पे रखने की हम लोगों ने प्रोविज़न की है। एक इंफॉर्मेशन डेस्क होगा, वहाँ पर हम लोगों ने एक वाटर फाउंटेन प्लान किया है जो कि अगेन वन ऑफ इट्स काइंड दुनिया में होगा, जो अज़ान जिस तरह जैसे वो शुरू होगी तो अज़ान के साथ साथ वो फाउंटेन भी उसी तरह एक्ट करेगा, उसके ही सुरों में वो पानी अपने आप में एक्ट करेगा। लाइट के फीचर्स हैं, हम लोगों ने लाइट्स भी इस तरह यहाँ पर हम लोगों ने सोचा है कि जिस तरह सनराइज़ या सनसेट होगा उसके ड्यूरेशन के हिसाब से लाइट्स ऑन होगी या ऑफ होगी। लाइट आर्किटेक्चरली लाइट्स का भी जो इम्पोर्टेंस हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं सब जगह, उसका भी हम लोगों ने पूरी तरह से यहाँ पे यूज़ करने का इरादा किया है। All right, Imran Sheikh, I'd also like to understand from you, how long do you feel it will take to ultimately build the mosque, and when are you expecting the foundation stone to be laid? हमारा इरादा तो फरवरी का था, लेकिन कमेटी मेंबर्स आपस में डिसाइड कर रही है, जो कि जो हमारे चेयरमैन है हाजी अरफा, जो ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जो चेयरमैन है और जो मेन डिसीजन मेकर है हमारी सारी कमेटी, तो आपस में मशवरा होने के बाद में यही तय किया जा रहा है कि पोस्ट रमज़ान, मतलब रमज़ान के बाद में ही यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा, बिकॉज कंसिडरिंग वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उस सिटी की या लोकेशन की, अयोध्या की और यूपी की, तो इस वक्त में काफ़ी ठंड होती है वहाँ पर, और जिस तरह का माहौल वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इस दौर के प्रोग्राम के अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का आना जाना वहाँ पर होगा, एक्सपेक्टेड है कि शायद पूरे इंडिया से वहाँ पर लोग प्रेजेंट रहें। तो उसको सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने सोचा है कि रमज़ान के बाद यहाँ पर वो फाउंडेशन स्टोर रखा जाए, और इरादा और उम्मीद यही है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, बात सिर्फ मस्जिद की अगर है तो मस्जिद इंशाल्लाह तकरीबन
2.5 से 3 साल में पूरी तैयार हो सकती है। Okay. लेकिन जो कि हम मस्जिद के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रपोज किए हैं, जैसे यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज और एक स्कूल होगा, एक हॉस्पिटल होगा जो स्पेशली कैंसर हॉस्पिटल है। जी। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने एक कॉमन किचन और कॉमन डाइनिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रपोज किया है, जो तकरीबन 1,000-2,000 लोगों का डेली बेसिस पे जो फ्री होगा सभी लोगों के लिए और सभी धर्म के लोगों के लिए, और प्योर वेज डाइनिंग एरिया हम लोगों ने जो प्रपोज किया। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ में अगर शुरू करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, तो शायद ये पूरा कैंपस रेडी होने के लिए 7 से 8 साल लग जाएंगे। Okay, लेकिन wow. बात अगर सिर्फ मस्जिद की है, तो मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन ले होने के बाद में तकरीबन 2.5 से 3 साल बाद इंशाल्लाह ये मस्जिद पूरी तैयार होनी चाहिए। Okay, all right. You've already elaborated, Imran ji, and we were talking to Haji Arfat also before this. But if you could just tell us a little bit more in detail the plans to what other aspects will be constructed in the mosque complex. You were telling us about a hospital and school. मस्जिद के अलावा जैसा मैंने कहा कि ये बेसिकली एक इंडो इस्लामिक सेंटर के तौर पे ये कैंपस डिज़ाइन हो रहा है। जी। कोशिश तो हम लोगों की यही है कि ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद ना रहे, ये एक सोशल गेट टुगेदर के लिए भी एक स्ट्रक्चर काम आए, या ये कैंपस काम आए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों के दिल में और दिमाग में जो हमारे यहाँ के इंडियन कॉन्टिनेंट पे पर्टिकुलरली है इस्लाम को लेकर या मुस्लिम्स को लेकर, तो हमारा इरादा यही है कि ये कैंपस में जब लोग कोई आएंगे, आउटसाइडर्स आएंगे, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या कोई भी रिलीजन के भाई हो, वो यहाँ पर आए और उनके दिमाग में दिल में जो भी मिसकॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम है या मिसकॉन्सेप्ट्स ऑफ मुस्लिम्स है, वो यहाँ पर आकर क्लियर हो। अक्सर हम लोगों ने देखा है काफ़ी जगहों पे काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं मस्जिदों को लेकर भी। जी। जैसे मैंने तो काफ़ी जगह ये भी अपने आंखों से देखा है और सुना है कानों से इंटरेक्शंस में, कि लोगों को यूँ लगता है कि मस्जिदों के अंदर कोई एम्यूनिशन सिखाया जाता है या वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, और पता नहीं कैसे कैसे कुछ ख्यालात थे लोगों के दिमाग में। तो हम वही चाहेंगे कि यहाँ पे लोग आए, हम उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे। काफ़ी होमली एटमॉस्फेयर होगा, डिज़ाइन भी इस तरह होगा कि यहाँ पे हर किस्म के लोग, हर रिलीजन के लोग आए और अपना फील करे, यहाँ पर एक होमली एटमॉस्फेयर हो, काफ़ी वेलकमिंग हो, और उसको एक्सपीरियंस करें, उसको अपनाएं, और जो भी दिल में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, और कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि यहाँ पर वो आके दूर करें। Okay. Imran Sheikh, of course, one important question then arises is the funds regarding the mosque. How exactly are the funds being raised for the construction, sir? And if you can maybe help our viewers understand if there is a way that people can donate, if they can be in touch with you, what really is the process? अभी ये भी सब्जेक्ट ऐसा है सर कि बीइंग एन आर्किटेक्ट ये सब्जेक्ट मेरी तरफ नहीं है, क्योंकि ये कमेटी डिसाइड कर रही है और मशवरे हो रहे हैं आपस में कि इसका फंड रेजिंग कैसे हो, क्योंकि ये जो कि चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन साहब है, इन लोगों की तरफ का डिसीजन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल है, और जो कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं जैसा मैंने कहा कि मैं एक टेक्निकल एज एन आर्किटेक्ट ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर हूँ। ये सब्जेक्ट कमेटी का है और वो प्लान कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं, आगे के फ्यूचरिस्टिक प्लान बन रहे हैं कि इसको किस तरह आगे हम लोग फाइनेंशियली आगे इससे बढ़े। Okay. At the same time, Mr. Sheikh, because you are the architect and it is your vision that will come to life, it's important to understand from you, how will the mosque then celebrate unity in diversity in India? जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये एक इंडो इस्लामिक कैंपस है। इंडो इस्लामिक जैसे इसमें इंडिया का भी जो मेन कल्चर है और हम लोगों का जो आपस में जो आपसी जो भाईचारा है, यहाँ पर हम लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए और रिटेन करने के लिए ये कैंपस डिज़ाइन कर रहे हैं। बहुत सारे और भी छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स है जो यहाँ पर लोग आने के बाद में डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन के तौर पे लोग अपनाएंगे, और काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों के दिलों में, सिर्फ मुस्लिम से नहीं, मेरे भी काफ़ी नॉन मुस्लिम जो दोस्त हैं और बाकी भी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो काफ़ी एक्साइटेड है कैंपस को लेके, क्योंकि ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये एक इंडो इस्लामिक सेंटर है, एक भाईचारा का प्रतीक होगा, और हर कोई यही चाह रहा है कि बस ये जल्द से जल्द शुरू हो और यहाँ पर आके अगेन कि सब लोग अपने अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो यहाँ पे आके
दूर करें और आपस में सब अच्छे से खुशी खुशी इसको सेलिब्रेट करें और इसको अपनाएं। Absolutely, Imran Sheikh, thank you so much. Before we let you go, sir, you've already shed some light on your vision and plan for the mosque, but we'd like to understand from you, do you feel that Ayodhya will emerge as a global destination for people of all faiths? I know you've already shed some light on that. You want that people, and as you said, that even you have non-Muslim friends who are very excited about the mosque. But if you could, perhaps put your thoughts out there on this as well, Ayodhya as a global destination for people of all faiths. ये बिल्कुल बन सकता है कि अभी ऑलरेडी जैसा मैंने कहा कि राम मंदिर को तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए हुआ है, और साथ में अगर ये मस्जिद भी वहीं आ जाती है तो बेशक ये इंडिया का सबसे बड़े रिलीजियस डेस्टिनेशन में से एक होगा। और अगर आप देखेंगे अगेन जैसा मैंने कहा कि ग्लोबल सेक्शन को अगर हम रिलेट करते हैं हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर, तो जिस तरह हमारा जो लोकेशन पे हमारा दिल है, प्रैक्टिकली जो लोकेशन पे हमारा दिल है, तो इंडिया को अगर हम रिलेट करते हैं किसी ह्यूमन बॉडी से, ऑटोनॉमी से, तो जिस लोकेशन पे अयोध्या आता है और जिस लोकेशन पे ये दोनों चीज़ें आती है वो एक्चुअली इंडिया के दिल पे आती है, उसका लोकेशन भी उसी तरह है। तो ये लोगों के दिलों में है, ये दोनों भी जगह, ये दोनों भी चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, हर किसी के इंडियन कंटेक्स्ट में या इंडियन सिटीजन के, ये हर भारतीय के दिलों में होगा। ये जिस तरह इसका जोग्राफिकल लोकेशन है उसी तरह हर एक के दिल में ये दोनों की इम्पोर्टेंस और इसकी अजमत जो है वो हमेशा रहेगी। Well, Imran Sheikh, thank you so much for joining us. It's a very lovely thought कि जी अयोध्या भारत के दिल में है, and in fact we are currently live from Ayodhya, from the site of the mosque. My colleague Akshat Gupta with us on the broadcast. Akshat, take it away if you can just quickly show to our viewers what really is the status right now of the land. I see the board behind you, but just take it away for the next few minutes and just show us around as much as possible. Akshat, over to you. Well, yes, after the decades-long conflict and the inauguration of the Ram Temple, the Indo-Islamic Cultural Foundation have also revealed plans to begin the construction of the mosque in Dhannipur, which is located 25 kilometers away from the heart of Ayodhya in May this year. And we are also, we just try to show you because the construction has actually not begun at this place, and it is actually on the dusty plains of Dhannipur where this mosque will be constructed. Well, the mosque will be named after Masjid Muhammad bin Abdullah, after Prophet Muhammad, and it will approximately take 4 to 5 years to complete the construction, basically because after the 2019 Supreme Court verdict paved the way for the construction of Ram Temple. It also directed the authorities to allocate a prominent place, a 5 acres place, to Waqf board for the construction of mosque, and this is the place where the mosque will be constructed. Well, if we just talk about what will the mosque actually feature, because there you can see a mazar, because it is an old mazar, so it will stay, and other 5 minars will also come up. And the mosque will also be having a hospital, a library, a research center, because that were the initial plans only. So of course all the initial plans will be retained, but there is one thing, a stark silence is here. The work of the mosque hasn't begun as of now, and some of the Muslim people also believe that the construction of this mosque will make a fresh start after a decades-long dispute. So of course it will be crucial to see when the construction work of this mosque actually begins. Okay, all right, Akshat, thank you so much for showing us a little bit of the ground there where the construction will be taking place, and we will of course come back to you, but we have more guests joining us on the broadcast. I have next up with me Athar Hussain. He is the secretary of the Indo-Islamic Cultural Foundation, which is also looking after the construction of the mosque. Mr. Hussain, thank you so much for speaking to NewsX, sir. I want to begin by asking you, do you now have a
timeline as to when the construction for the mosque would begin, and when do you think it could conclude? Not exactly, I would say that we can have the timeline, but yes, for sure, because as we have been saying for the last few months, that our Chief Trustee, Mr. Farooqi, has had meetings with the concerned parties, those who are interested in coming out and helping out with this project. And in this regard, we already have a development committee, a Mumbai-based gentleman, Mr. Arafat Sheikh, is chairing that committee. Ji. And there are certain redesigning being done. The already design which was submitted with Ayodhya Development Authority earlier. And in this redesigning, it will take some time. And obviously, the meetings regarding the fund mobilization, they are still on. And hopefully, within a month, we can have an exact timeline. But this Ramzan that is coming, Ramzan will be coming in another 2.5 months. Hopefully, we can have that timeline for sure. Okay. At the same time, Mr. Hussain, has the planning for the foundation stone ceremony been started? Do you have any idea who all will be invited? What will the ceremony really be like? As such, there's no planning which we can come out. I would again repeat it that another month and a half, all these details will be in public domain. And the invite list and whatever will be the program like of how the masjid construction will start will be in public domain very soon. Mr. Hussain, how exactly are you going about with the fundraising, and how can people now contribute to this project? The Indo-Islamic Cultural Foundation is a trust, and we have our bank details in public domain. But now, recently we've been redesigning our website, and it will be launched in coming few days very soon. It will also be there. Okay. And we have an office in Lucknow. They can contact with us. And obviously, at the Thanipur site, there will be an office where the people can also contact. These are the ways and means where people can contact personally. As far as mobilization is concerned, we are looking forward that especially this project entails a big project of an hospital too. So there we want some specialized people, those who know, those who have know how to run a hospital on a charity model. So we are in contact with groups who have the experience of running in a hospital. Right. And certainly we'll have a community which is part of that hospital project. And we'll have an archive kind of a museum which showcases the Awadh culture, where Maryada Purushottam Ram personifies this Awadh Ayodhya. And as you know, in the entire world, this Awadh is also known for its Rajam Tehzeeb. And in 1857, when all the Hindus and Muslims stood together against the British colonialists, we want to share that legacy, that shared legacy to the people at large, to the entire world, to that archive. So all those things, all these things require a lot of funds. And hopefully, with a new mobilization strategy which has been drawn by our Chief Trustee, Mr. Farooqi, those funds will be there, and Okay. the project will start soon. All right, absolutely. At the same time, Mr. Hussain, we were just speaking earlier to Mr. Haji and also to the architect, Mr. Imran Sheikh. But if we were to ask you, some designs, of course, have been shared and finalized. Today, if you were to imagine the masjid, sir, what does it look like in your vision? And if you can tell us what you will find, or what do you find unique about the design? As far as the architecture and the beauty and whatever be the building part, that will obviously be unique and will make an impression. But I personally
as a trustee of the trust, since involved with the project the earlier days, I have this belief that this land had come in from an extraordinary situation after the 9th November 2019 judgment. And there, in that judgment, there is an effort we are trying to draw, that it gives a message to the entire world that the communities involved in the fight of the civil suit are actually not fighting. They are brothers and sisters together as a society, both Hindus and Muslims, especially in the Awadh region where this project will be. We have a long history of shared struggle and shared legacy, and we want to showcase this project to the entire world that as a community we can serve also to that hospital, to the masjid, which is a place of faith and belief. We can, with its beauty of the masjid architecture, we can convey that message of like we believe in the oneness of God, and obviously that archive which we want to showcase about our will give a message to the entire world that from extraordinary situations, new beginnings can be done, and we have already had those cherished relationships, and we preserve those relationships, and we want to show that to the entire world. These are the things we want to show from this project. Okay, Mr. Hussain, how hopeful are you then for Ayodhya to become a global tourist religious hub, given that the Ram Mandir has been constructed and now very soon there will be a mosque as well? Obviously, more of a tourism hub. It will be a center of spirituality and the larger message that the world now needs when in these times of so many wars and troubles all over the globe, that here in this land of Ram, where we have Rahim also, plus Khan also, and this place, especially Awadh and around, has been a cradle of, I would say, of tehzeeb, and that tehzeeb will be sent, this message will be sent to the entire world, at least from the mosque project. And as far as the Ram Mandir, it's a matter of faith and belief of a large population of the world. I would say around more than 1,200 to 1,300 million Hindus have a belief and faith in Lord Ram. Will obviously want to be there, visiting there, and Ayodhya will be a completely a different place as we know and as we have known till date. Mr. Hussain, at the same time, sir, unfortunately there are some misconceptions that are being generated that Muslims are not happy with the making of the Ram Mandir. We've seen a lot of global headlines as well to those tunes. What would you like to say to that, sir? Obviously, that's not true. And yes. I have said it earlier that on 9th November 2019, when the judgment came, and prior to that judgment, when there was a mediation process by the Honorable Supreme Court, and in that process, many stakeholders and also the Muslim intelligentsia and people from cutting across section of the society, they participated and they gave their viewpoint. And most of our socio-political clergy then had said in one voice, whatever be the Supreme Court judgment, our highest court of the land, we will really respect that judgment, and we will observe that everything goes according to that judgment. In fact, all the community said in one word. And now, when the judgment came, so it is in the due process that obviously when that plan has been given for Ram Mandir, there will be a big Ram Mandir there too. So it's on the course of that, how would anyone object to it when they've already said they've accepted it? I think it's just a misconception, and especially for us and people, those who live around in the region of Awadh, and Lucknow is an extension where I live, and Ayodhya, I know. Everyone has acceptance that Lord Ram is like one of
he was here, and he's considered Maryada Purushottam, and he's a matter of faith and belief for our fellow Hindu brothers. So everybody has respect for that, and they really welcome Mandir coming up for his worship for our Hindu brothers and sisters. And this is all misconception about any negativity amongst Muslims. Absolutely. Mr. Hussain, before we let you go, sir, I want to understand from you, what is your message then to all Indians as the construction of the mosque is hopefully set to begin very soon? My message is like, I'm a very small individual in this process, and whatever my contribution as one of the trustees of this trust, it's like that this happened. This is my dream that something unique may come from this mosque project, and that uniqueness not only restrict to its beauty of its architecture, but in the message it wants to give that. And we in New India should usher for progress for this country, and every citizen of this country, irrespective whether he or she is Hindu, Muslim, or whichever caste or region, they have their basic aspirations like of living in peace within the society, and better livelihood for the next generation, better job opportunities, better education, better health facilities. And on the one side, there will be a big center of faith there, where I believe those wishes and prayers will be addressed to. And here in mosque project also, there will be a mosque where one can pray, and obviously something for community service, that is to a hospital and a community kitchen. So everyone should contribute for this project and pray that this project gets completed soon. Absolutely. Thank you so much, Mr. Hussain, for joining us on the broadcast to take us through your thoughts and your vision for this mosque in Ayodhya. On that note, I'm also being joined by another very crucial voice. Iqbal Ansari is a former litigant in the Babri Masjid case, and today he joins us as we take this conversation forward about the masjid. Ansari ji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वापस हमारे चैनल पे बैठे हैं। और आज हम अंसारी जी मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, आज मस्जिद की बात कर रहे हैं। आई लाइक टू बिगिन बाय आस्किंग यू, आपने जो मस्जिद का डिज़ाइन है जो अयोध्या में बनेगा, वो शायद आपने देखा होगा, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो जो है डिज़ाइन तो बहुत मेल के आ रहे हैं। जब से 5 एकड़ ज़मीन मिली है वक्फ बोर्ड को, तब से तो नक्शा बहुत बार देख चुके। ओके अंसारी जी, एट द सेम टाइम जो अब ये मस्जिद बन रही है, एक भव्य मस्जिद बन रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी पाई जाएगी। आपको क्या लगता है इसके बारे में और क्या महसूस हो रहा है अभी? देखिए, ये है, हम ख्वाब नहीं देखते जी। 4 साल बीत चुका है, बोर्ड लगा है, अभी वहाँ कोई केवल नक्शा जो है वो दिखाया जाता है। ये केवल मीडिया तक के सीमित है। वह उसके चेयरमैन जफर फारूकी हैं, उन्होंने अपना एक ट्रस्ट बना रखा है। ओके अंसारी जी, कहीं चलिए आप कहते हैं कि आपको ज़्यादा होप नहीं है, होपफुली जो आपको लग रहा है वो इसी साल बदलेगा, जैसे कि हमने बहुत लोगों से बात करी और वो कह रहे हैं कि होपफुली इस साल जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी मस्जिद की, और दे ट्राइंग टू फिगर आउट द फंडिंग अराउंड इट। बट कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि अयोध्या सभी धर्मों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रैवल डेस्टिनेशन ज़रूर बनेगा? देखिए, अयोध्या पहले से है, हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अयोध्या ऐसी नगरी है कि पूरे दुनिया में अयोध्या ऐसी नगरी कहीं नहीं है जी। अयोध्या में शांति का माहौल, अयोध्या शांति का पैगाम देती है। अयोध्या में कोई ऐसी जात नहीं जो है बची है जिसका मंदिर ना हो। अगर अयोध्या में सरजू नदी है तो शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार भी है, नूह अलैहिस्सलाम की मज़ार भी है, हनुमान जी का मंदिर है, पूरे अयोध्या में राम सीता की मंदिर भी है। अयोध्या ऐसी धरती है, यहाँ लोग इबादत के लिए आते हैं, पूजा पाठ की नीयत से लोग आते हैं। अयोध्या की सरजमी
वो ज़मीन मानी जाती है कि अयोध्या आने के बाद में लोगों का मन बदल जाता है। अयोध्या बहुत शांत रही जी। ये पूजा पाठ की नगरी है, नमाज इबादत की नगरी है। यहाँ जो भी है अयोध्या निवासी हैं, इनमें कोई विवाद भी नहीं रहा कभी। ओके अंसारी जी, अब राम मंदिर है और एक ऑल्टरनेट स्थान पे अब एक ये भव्य मस्जिद भी बनने जा रहा है। क्या आपको लगता है ये अच्छा उदाहरण है कि भारत जो डिविजिवनेस थी, रिलीजियस डिविजिवनेस थी, उससे बहुत आगे बढ़ चुका है? देखिए, अयोध्या या हमारा देश, हमारे देश में जो है, हमारा देश जो है ये हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का देश है। ये देश है, हिंदुस्तान में भाईचारा होनी चाहिए, जात बात नहीं होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस देश में धर्म और जात की राजनीति होती है वो देश बड़ा पीछे जो है पहुंच जाता है। हमारा तो यही मानना है कि लोग अपने धर्म के पक्के हों और अपने नियम के अनुसार चलें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना भला खुद हो जाएगा। जी अंसारी जी, आपने अभी बहुत अच्छी बात करी थी अयोध्या नगरी के बारे में। उसी पर मैं ये इंटरव्यू ख़त्म करना चाहूँगी। आई लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आपका क्या मैसेज है लोगों को और क्या अपील है अबाउट अयोध्या एंड इट्स फ्यूचर, अयोध्या और उसके भविष्य के बारे में? जैसा कि हमने अभी चर्चा करी कि एक मंदिर भी बन चुका है, मस्जिद बनने वाली है, तो आपको क्या लगता है भविष्य कैसा रहेगा अयोध्या का? हम अयोध्या की नगरी के रहने वाले हैं जी। अयोध्या और हिंदू और मुसलमानों के बीच में हमेशा सौहार्द रहा। ये धर्म की नगरी है, यहाँ हर जात के, हर धर्म के देवी देवता विराजमान हैं। जी। लोग जो है धर्म की राजनीति, जात की राजनीति छोड़ करके भाईचारा की राजनीति करें। गांव में भाई जो है, पड़ोसी में भाईचारा होनी चाहिए, गांव में जो है भाईचारा होनी चाहिए, देश में भाईचारा होना चाहिए। जिस दिन जो है हर देश में, हर गांव में, हर शहर में भाईचारा हो जाएगा, हिंदुस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया से ऊपर होगा। कहने से नहीं जो होने वाला है, भाईचारा बनाने से होने वाला है। हमारा मजहब साफ कहता है, हम अयोध्या के निवासी है, ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। ये ऐसी धरती है कि दूसरे का भला करो, अपना भला खुद जो है हो जाएगा। ये यहाँ की तहजीब है। अयोध्या में बहुत से लोग कहते हैं अयोध्या हमेशा गर्म रहती है, अयोध्या में सरजू नदी है। ये सबके दिमागों को जो है, अयोध्यावासी जो भी अयोध्यावासी हैं, सबके दिमाग को यहाँ ठंडा रखती है। ये ऐसी नगरी है, यहाँ लोगों के पास धर्म की आस्था है और धर्म की आस्था होनी चाहिए। अगर धर्म की आस्था अगर सच्ची है तो अपने ईमान के पक्के हैं, तो अपने पड़ोसी के लिए भी सच्चे हैं। इकबाल अंसारी जी, thank you so much for that wonderful thought. It's a good note to perhaps end this very crucial conversation we were having. Yes, the Ram Mandir is constructed, but it is now time to also perhaps look into the construction of the mosque. As Iqbal Ansari has also said that he's been waiting, he's been looking at a board for the past 4 years, but he's hoping that the construction will begin soon. We've had an in-depth conversation with the people who are looking after the construction of the mosque. Yes, there are challenges and hurdles still, but this once again presents an opportunity to India to come together and make the dreams of this mosque also come true. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.